So today we are going to discuss, so this is the next lecture of derivatives. So we are going to discuss chain rule. Alright, so this is a very important rule. So in the last lecture we had discussed when the two functions will be multiplied or when the two functions will be divided, then how to use the derivatives, right? What is the formula for derivatives? In this lecture we are going to discuss something important, that is chain rule, right? It's very important. I will understand. So I'll just explain you a bit. Suppose we have a function y is equal to f of g of x. F of g of x. So I'll take an example also simultaneously. Y is equal to sine of cos of x. Okay, just to understand. So this is f, this is g, this is f of g of x. Okay, how to find dy by dx? That is the question. Okay, so how to find dy by dx? So to find this dy by dx, we'll have to understand this chain rule, right? So we're going to understand that chain rule, right? So if we have this kind of function y is equal to f of g of x, then how to find its derivative, right? That's the question in front of us. So let us start and let us understand that how we will do this. So it's very simple. So if you have this kind of function f of g of x, or you have f of g of h of x, like this, yes, this kind of function. So how to find a derivative in this case? So let us try to understand. So let us start with this example, y is equal to sine of cos x, right? And then we'll get to some more examples. Okay, so let us start with this example, y is equal to sine of cos x. So let's explain you. Suppose we are taking this example, y is equal to sine of cos x. Okay, so let us take this example. We have to find a derivative of y equal to sine of cos of x. Sine of cos of x. Alright, so we know the derivative of sine x. If we have y is equal to sine x, then its derivative will be cos x, right? Okay, or if we have y is equal to sine t, then its derivative with respect to t will be cos t. Okay, alright. But if you want to find its derivative with respect to x, for y equal to sine x, the derivative will be cos x. This is a function of x. This is a function of x, and if we differentiate it with respect to x, then we'll get cos x. So here y is sine x, is a function of x, and if we differentiate it with respect to x, then we'll get cos x. If y is a function of t, f of t, that is sine t, and we differentiate it with respect to t, then we'll get cos t. Okay, but if y is sine t, let us understand this, but if y is sine t and that is a function of t, and you want to find dy by dx, if you want to find dy by dx, then how is it possible? फिर से समझने की कोशिश करिए हम लोग क्या कह रहे हैं. If it's a function of x and you differentiate with respect to x, you'll get cos x. If it's a function of t and you differentiate with respect to t, you'll get cos t. Okay, but if it's a function of t and you want to differentiate with respect to x, then how to do it? And that's, you cannot write cos t or you cannot write cos x. Both are wrong. Then what to do, right? What can we do, right? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि if it's a function of x and you differentiate with respect to x, you get cos x. If it's a function of t, you differentiate with respect to t, you get cos t. Why? Because this is dependent on x. So when x will change, this will change. This is dependent on t. So when t will change, this will change. But this is dependent on t, and you want to find the rate of change with respect to x. Then how to do it? That's the important question, right? How to do it? So that's very simple. So what we will do is we will use chain rule. So what is chain rule? Chain rule is dy by. So first we will differentiate with this with respect to t, right, dt, and again in the numerator we'll multiply by dt and this will be dx. So what we have done, we have added a chain.
We have added a chain. Okay, so this has become dy by dt into dt by dx. समझ में आ रहा है? Okay, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इस केस में जो dy by dx है वो हो जाएगा, उसको हमने लिखा है dy, एक हमने t इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने एक t को बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया, t से डिवाइड कर दिया dt से और dt से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो इस तरह से एक चेन इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये dy by dt हमको पता है, क्योंकि देखो y sin t और dy by dt क्या होगा, cos t, तो dy by dx हो जाएगा cos t into dt by dx, cos t into dt by dx। तो ये समझ में आपको, तो इसको कहते हैं चेन रूल। ठीक है, तो अगर हम लोग ये जिस चीज का फंक्शन इट्स अ फंक्शन ऑफ x, अगर उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो नो प्रॉब्लम, तो cos x। इफ इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम t और हम उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, नो प्रॉब्लम, cos t। ठीक है, लेकिन इफ इट्स अ फंक्शन ऑफ t एंड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। Why? Because this is dependent on t and you want to find its rate of change with respect to x. समझ में आ रहा है? It's a function of t and you want to find its rate of change with respect to x. That's not possible. So उसको कैसे पॉसिबल करना है? तो उसको पॉसिबल करने के लिए हम लोग एक चेन इंट्रोड्यूस करते हैं। हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? हम लोग एक चेन इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चेन हमने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे कैसे? हमने dt से डिवाइड किया, dt से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि y is a function of time. y is a function of t, y is a function of time. तो हमने क्या किया? पहले इसको dy by dt किया, लेकिन जो कि हमने एक dt यहाँ पे लेके आए हैं हम डिनोमिनेटर में, तो वही dt हम यहाँ लेके आ गए न्यूमरेटर में, तो dt by dx। तो इसलिए ये हो गया cos t dt by dx। ठीक है, तो ये हो गया अपना dy by dx। तो इसको बोलते हैं चेन रूल। तो ये हमने देखो एक चेन इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे। तो ऐसे मल्टीपल चेंज इंट्रोड्यूस हो सकता है, सिर्फ एक नहीं, ऐसे इनफाइनाइट चेंज इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो दैट वी विल डिस्कस स्लोली। ठीक है, तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को लेकर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। ये यहाँ पे ये a हो गया, ये पूरा b हो गया और ये पूरा हो गया c। ठीक है, तो पहले आप यहाँ वीडियो पॉज करो और इसको नोट डाउन करो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे सॉल्व करना है। ओके ओके, सो लेट अस गो अहेड विद सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखो कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये जो cos x है, cos x को हम लोग t ले लेंगे। लेट cos x इज इक्वल टू t। अगर हमने cos x को t मान लिया तो y क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा sin t। y क्या हो जाएगा, sin t। देखो ऐसा समझ में आ रहा है? तो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें sin t का डेरिवेटिव पता है, हमें sin ऑफ cos ऑफ x का डेरिवेटिव नहीं पता है, लेकिन हमें y इक्वल टू sin t या sin x का डेरिवेटिव पता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये पहला स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 1 कि लेट cos x इक्वल टू t। तो ये हो गया, यहाँ पे t डाल दिया आपने इसकी जगह, तो sin t हो गया, y इक्वल टू sin t। अब आपको फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब समस्या हो गई, अब प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या हो गया, ऊपर t है, ऊपर क्या है t, यानी डेरिवेटिव ऑफ sin t निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब ये जो फंक्शन है ये t पे डिपेंडेंट है और तुमसे बोला जा रहा है कि फाइंड इट्स रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि पहले इसको t से डिवाइड करो, फिर इसको dt से मल्टीप्लाई करो और फिर dx लिखो। मतलब ये जो चीज है ये यहाँ लिखी हुई है, देखो लिखी हुई है, बस हमने क्या किया, हमने ये चेन डाल दिया dt का बीच में। ठीक है, इससे क्या फायदा हो गया, इससे ये फायदा हो गया कि ये जो पहला चीज है डेरिवेटिव ऑफ sin t विद रिस्पेक्ट टू dt, वो हो गया cos t, क्योंकि ऊपर भी t नीचे भी t, तो डेरिवेटिव हो सकता है। और ये ऐसे का ऐसा ही रह गया dt by dx, dt by dx कैसा हो गया, ऐसे का ऐसा ही रह गया। तो ये हो गया अपना स्टेप नंबर 2। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3 पे। अब हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 ये है कि जो हमने ये सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया था, तो उसको हम लोग रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो री सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स, t इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये t इक्वल टू कॉस एक्स वहाँ पर डाल देंगे, स्टेप नंबर 3। तो अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस t। तो कॉस ऑफ t, t की जगह आएगा कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ dt बाई dx, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस एक्स, इसको आप कॉस स्क्वायर एक्स मत कर देना। कॉस स्क्वायर एक्स कब होता है,
जब cos x इंटू cos x होता है तब होता है cos square x, cos x इंटू cos x, cos square x, बट ये cos of cos x, तो इसको cos square नहीं करना, ठीक है। ओके, और डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होगा, माइनस साइन x। तो कुल मिला के जो आंसर आ गया वो आ गया माइनस साइन x इंटू कॉस ऑफ cos x। तो ये इसका आंसर है, ये इसका क्या है आंसर, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 3 से आंसर आ चुका है, ठीक है। तो फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ हमने क्या किया। देखो ये हमारे लिए एक अननोन है y इक्वल टू साइन ऑफ cos ऑफ x, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमने इस अननोन को एक नोन में कन्वर्ट किया है। हम लोगों ने क्या किया है, इस अननोन एक्सप्रेशन को एक नोन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया। नोन एक्सप्रेशन मतलब साइन t या साइन x, जो कि हमारी नोन एक्सप्रेशन है, तो उसमें हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग इस cos x को उठा के t डाल दे रहे हैं, हम लोग cos x को उठा के डाल दे रहे हैं, t डाल दे रहे हैं। तो वो जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन cos x की जगह पे हो जाएगा y इक्वल टू साइन t। अब ये हमने देखा हुआ है, ये हमने कहीं ना कहीं देखा हुआ है। तो ये पहला स्टेप है सब्स्टिट्यूशन, कि पहले फंक्शन के अंदर जो है उसको t डाल दो। तो ये पहला फंक्शन है, इसके अंदर जितने फंक्शन हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, सबको उठा के t डाल दो। पहला स्टेप, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें अब इसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है dy बाई dx। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy बाई dx। तो आपने लिख दिया dy बाई dx, y की जगह आपने डाल दिया sin t, तो यहाँ आपने लिख दिया sin t, तो डेरिवेटिव ऑफ sin t विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे वेरिएबल सेम नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि वेरिएबल इज नॉट सेम। चेन रूल कब यूज होता है, व्हेन वेरिएबल इज नॉट सेम। तो जब ऊपर नीचे वेरिएबल सेम नहीं होगा तो चेन रूल लगेगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो वेरिएबल है वो t है और नीचे जो वेरिएबल वो x है, तो दोनों वेरिएबल अलग अलग है। तो जब दोनों वेरिएबल अलग अलग होंगे तो क्या लगेगा, तो चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल कैसे लगेगा, तो चेन रूल ऐसे लगेगा कि पहले हम वेरिएबल सेम कर देंगे, तो d sin t है ऊपर, तो नीचे भी dt कर देंगे, लेकिन हमने dt एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया है, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए हमें न्यूमरेटर में भी एक dt डालना पड़ेगा, तो हमने dt डाल दिया और बचा हुआ dx यहाँ पे। मतलब जो ये d sin t बाई dx था वो यहाँ लिखा हुआ है d sin t बाई dx, बस हमने एक चेन इंट्रोड्यूस कर दिया t का, dt और dt। अब ये जो पहला वाला है इसमें क्या है, इसमें ऊपर नीचे वेरिएबल सेम है, ठीक है। तो हम लोग इसको हटा देते हैं, ये जो यहाँ पे हमने इसको राउंड किया तरह से, ये हटा देते हैं, ठीक है। और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अब हुआ क्या, चेन इंट्रोड्यूस करने से क्या फायदा हुआ। चेन इंट्रोड्यूस करने से ये फायदा हुआ कि यहाँ पे ये जो t है और ये जो t है, इसमें क्या हो गया, इसमें वेरिएबल सेम हो गया। जब वेरिएबल सेम हो गया तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, तो वो हो गया कॉस t। और ये चीज ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसको ऐसे का ऐसे ही हमने रख दिया एज इट इज। ये हुआ स्टेप नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 1 इज सब्स्टिट्यूशन, स्टेप नंबर 2 इज टू इंट्रोड्यूस अ चेन, राइट, एंड स्टेप नंबर 3 इज रीसब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दैट इज जो भी यहाँ आपने t डाला था वो t को आप वापस डाल दो। तो t का वैल्यू क्या है, cos x, तो इस cos x को वापस डाल दो, ठीक है। इसको हमने वापस डाल दिया, तो हमने t की जगह डाल दिया cos x, तो ये हो गया cos ऑफ cos x, ठीक है। और d बाई dx, t की जगह वापस cos x, तो ये हो गया एक्सप्रेशन। तो अब ये एक्सप्रेशन, इसको अब आप कुछ नहीं कर सकते, इसका काम खत्म हो चुका है, तो ये एज इट इज आएगा नीचे तक, ये चलता जाएगा एज इट इज, ठीक है। अब क्या बच गया, अब बच गया डेरिवेटिव ऑफ cos x। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x का होता है माइनस साइन x, बस वो लिख दिया आपने, ये आंसर आ गया, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट, इट्स वेरी सिंपल, ओके। इसका आप नोट डाउन करिए, ओके। तो हम लोग इसको थोड़ा चेंज करते हैं, हम लोग इसको कर देते हैं y इक्वल टू साइन ऑफ tan x, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, तो हमने लिया y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan x। अब क्या करेंगे, तो अब आप यहाँ वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो करने का, y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan x, ठीक है। बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। मैं बताता हूँ कैसे करना है, आप पॉज करके ट्राई करो। तो सबसे पहले जो tan x है, हम लोग tan x को t मान लेंगे, यानी पहला फंक्शन छोड़ के अंदर जो भी फंक्शन है उसको हम t मान लेंगे। तो हमने tan x को t मान लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन t, क्योंकि इसको t माना तो साइन ऑफ t हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सेकंड स्टेप dy बाई dx करना है, ये सब सेम रहेगा, एवरीथिंग सेम, ठीक है। और फिर रीसब्स्टिट्यूट करना है, तो t की जगह क्या डाल देंगे, t की जगह हमें वापस डालना है tan x। तो ये हो जाएगा cos ऑफ tan x और फिर यहाँ tan x, ठीक है। तो ये हो गया tan x, ये हो गया tan x, ओके। तो ये हो गया cos ऑफ tan x, ये एज इट इज चलता रहेगा क्योंकि इसका काम हो चुका है, इसका डेरिवेटिव हो चुका है, ये
राइट, ये इसका डेरिवेटिव यही हो गया था फर्स्ट स्टेप में, तो ये इसका काम हो गया। और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है sec square x, राइट, वो बताया हमने आपको, है ना, वो आपने याद कर लिया होगा, तो वो होता है sec square x। तो बस आंसर हो जाएगा sec square x इंटू कॉस ऑफ tan x, दैट्स ऑल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये सॉल्व हो गया, दैट्स ऑल, खत्म, ठीक है। चलो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये आप नोट डाउन कर लो, आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। अगर आपका भी यही आंसर आया है तो जरूर टाइप करना कमेंट में, यस सर आई आल्सो गॉट द आंसर, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, सेम यही 3 स्टेप्स करने हैं हमें, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं, अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू log ऑफ साइन x, ठीक है। आप देख सकते हो log ऑफ साइन ऑफ x, ठीक है, log ऑफ साइन ऑफ x, यानी log के अंदर साइन फंक्शन, साइन के अंदर x। तो क्या करेंगे बताइए, चलिए बताइए क्या करेंगे हम लोग, किसको लेंगे t, ऑब्वियसली सबसे अंदर वाले को, राइट, ये जो पहले फंक्शन के अंदर जो है जितने भी फंक्शंस हो सबको उठा के हम t मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है साइन x को t मान लिया, तो ये साइन x फंक्शन को हमने t मान लिया, ठीक है। अब साइन x को t मान लोगे तो y हो जाएगा log ऑफ t, तो ये हो गया log ऑफ t, ये पहला आपका हो गया। आपको dy बाई dx करना है, यानी डेरिवेटिव ऑफ log t विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमें फाइंड करना है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम ये हो गया कि ऊपर जो वेरिएबल है वो t है, नीचे वेरिएबल x है, वेरिएबल इज नॉट सेम। सो इफ वेरिएबल इज नॉट सेम वी हैव टू मेक इट सेम, तो वी हैव टू मेक इट सेम मतलब वी हैव टू यूज चेन रूल, यानी ये log t तो नीचे भी t ऊपर t dx, ठीक है। अब log t का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ तो वेरिएबल सेम हो गया t और t, तो आपको याद होगा कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, या ln x जो है log x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 1/x। ln x log x यहाँ पे एक ही है क्योंकि बेस e है, log e t है, ठीक है, इसको मैं ln बोल सकता हूँ, ln sin x, ठीक है, तो एक ही है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो log t है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/t। अगर ऊपर नीचे x हो तो डेरिवेटिव 1/x, ऊपर नीचे t हो तो डेरिवेटिव 1/t, तो 1/t dt/dx, समझ में आपको। तो ये आपने लगा दिया चेन, ठीक है, क्यों लगाया चेन, क्योंकि ऊपर नीचे वेरिएबल सेम नहीं है, ये t है ये x है, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमें ऊपर नीचे वेरिएबल सेम करना था, तो हमने क्या किया, हमने नीचे वही वेरिएबल लगा दिया जो ऊपर था यानी dt, लेकिन ये एक्स्ट्रा है इसलिए हमें वापस इसको न्यूमरेटर में डालना पड़ा, यानी dt/dx। अब ये जो टर्म है, जैसे कि log x बाई डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x होता है, हाँ, लेकिन ऊपर नीचे x हो तो वैसे यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ log t विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा 1/t, और ये हो गया dt/dx, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको t को सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन t का वैल्यू क्या था, तो आप देख सकते हो t का वैल्यू था sin x, तो अब sin x डाल देना है, ठीक है। तो आपने डाल दिया cos, नहीं अभी हटाना पड़ेगा आपको, तो ये हटा दीजिए, और क्या है अपने पास 1/t dt/dx, तो 1/t dt/dx, तो ये हो जाएगा 1, t की जगह आ जाएगा sin x, और डेरिवेटिव ऑफ t फिर से sin x, तो ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा क्योंकि इसमें अब इसका डेरिवेटिव हो चुका है, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा आगे एज इट इज 1/sin x, और डेरिवेटिव ऑफ sin x हो जाएगा cos x, तो ये हो जाएगा cos x/sin x मतलब cot x, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा, बड़ा मजा आ रहा होगा, राइट। तो इस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिसमें कि 3 फंक्शन हो, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, राइट, प्लीज नोट इट डाउन एंड इसको पॉज करके नोट डाउन प्लीज, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तो जो अगला एग्जांपल है वो क्या है, वो लेते हैं तो यहाँ पे ले लिया हमने y इज इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ cos ऑफ x क्यूब, ऐसा ले लिया, ठीक है, ओके, एक और ब्रैकेट आ जाएगा, हाँ, ठीक है। अब देखो आप कितने फंक्शन हैं, 4 फंक्शन है, log पहला, sin दूसरा, cos तीसरा, और क्यूब चौथा जो है वो क्यूब फंक्शन है, 4 फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले log के पूरा जो अंदर सब कुछ है इसको t मान लेंगे, इस पूरे को t, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू log t। अब चालू करेंगे, अब हम लिखेंगे इसको dy/dx लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/dx ऑफ log t
लेकिन ऊपर नीचे वेरिएबल सेम नहीं है, तो हम चेन रूल लगाएंगे। हम लिखेंगे चलो भाई ऊपर नीचे t से डिवाइड कर दो, log t बाई dt बाई dx। तो इसका डेरिवेटिव हमको पता है, ये हो जाएगा 1/t और ये dt बाई dx। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें t सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे इसमें t, ये पूरा t है, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1/t। तो ये पूरा आ गया साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। और ये है dt बाई dx, तो ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब। तो ये जो आप देख रहे हो ये टर्म, अब ये टर्म एंड तक चलता रहेगा, ये टर्म जो है एंड तक क्या होगा, चलता रहेगा, क्योंकि अब इसका डेरिवेटिव हो चुका है। अब ये वाला यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इस साइन के अंदर वाले को मान लेंगे कुछ तो z, ठीक है। तो हमने cos x क्यूब को क्या ले लिया, z ले लिया। अब ये अगला, ठीक है, नेक्स्ट वन, ठीक है। तो ये ऐसे कैसे चलता रहेगा, इसको हम k1 बोल देते हैं, k1। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू k1, ऐसे चलता रहेगा ये एंड तक। फिर लास्ट में इसको डाल देंगे वापस, k1 को ऊपर डाल देंगे, वापस डाल देंगे k1 को। तो ये हो गया, फिर यहाँ पे हो गया d बाई dx ऑफ, ये हो गया साइन z, ये क्या हो गया साइन z। तो अब फिर से आप देख सकते हो कि ऊपर नीचे वेरिएबल सेम नहीं है, ये z है ये x है, तो ये हो जाएगा k1। आप ऊपर नीचे वेरिएबल सेम करोगे, ठीक है, आप लिखोगे d साइन z बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, ऐसा लिखोगे। तो अब k1 ये हो जाएगा साइन z का हो जाएगा cos z और ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब z को डाल देंगे, री सब्स्टिट्यूट, तो वो हो जाएगा k1 cos z की जगह आ जाएगा cos x क्यूब, और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब। समझ में? अब ये चीज चलता रहेगा एंड तक, इसको k2 कह देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो x क्यूब है, यहाँ पे जो x क्यूब है cos ऑफ x क्यूब, तो cos ऑफ x क्यूब को हम लोग मान लेंगे, ये हमने क्या z माना था, इसको हम लोग कुछ u मान लेंगे, ठीक है, u। तो कुल मिला के ये क्या हो गया, कुल मिला के ये हो गया k1 k2 d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ u हो गया, x क्यूब को हमने u मान लिया, cos u, ठीक है। मतलब हर बार एक फंक्शन छोड़ के जो बच जाए, जैसे यहाँ पे इसको छोड़ के ये बचा, इसको हमने t मान लिया, यहाँ पे आया साइन को छोड़ के जो बचा उसको हमने z मान लिया, यहाँ पे आया cos को छोड़ के जो बचा उसको हमने u मान लिया, ऐसा। तो अब आप देख सकते हो, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा k1 k2, यहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे, तो चेन रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ cos u विथ रिस्पेक्ट टू u इनटू du बाई dx, ठीक है, ये हो गया। तो इसका हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा dy बाई dx, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू k1 k2, ये cos u का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन u, ठीक है। तो cos u का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा माइनस साइन u, और वो है du बाई dx, ठीक है, du बाई dx। तो अब हमें वापस u का वैल्यू डालना है, तो ये हो जाएगा k1 k2 माइनस साइन u, कितना है, u है x क्यूब, तो u डाल दिया आपने x क्यूब, और डेरिवेटिव ऑफ u यानी x क्यूब का डेरिवेटिव वो हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर है, बस आपको k1 k2 के वैल्यू डालने, k1 का वैल्यू और k2 का वैल्यू यहाँ डालना तो आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको बिठा देता हूँ, ये क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और फाइनल आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। सो यू नोट डाउन दिस क्वेश्चन, जस्ट द क्वेश्चन, okay, so let us write the final answer. The final answer will be dy by dx will be k1 is 1 by sine of cos of x cube, हो गया k1। k2 क्या है, k2 है cos of cos x cube, तो cos of cos x cube हो गया। फिर ये आ गया माइनस साइन ऑफ x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया एज द आंसर। अब चाहो तो इसको ये cos बाई साइन मतलब cot हो जाएगा, आप लिख सकते हो cot ऑफ cos x क्यूब, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, दोनों में cos है, तो cot ऑफ cos x क्यूब कर सकते हो, और ये हो गया माइनस साइन x क्यूब, ये सब मल्टीप्लाइड है इनटू 3x स्क्वायर। बस दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर,
ठीक है, तो मैंने आपको एक डिफिकल्ट एग्जाम्पल भी करके बता दिया इसका चेन रूल का। ठीक है, हम लोग और कुछ एग्जाम्पल लेंगे जो हमारे लिए यूजफुल है, राइट, मतलब नीट और जेई मेंस में जो जिस लेवल पे हमें क्वेश्चंस आते हैं, तो वी विल टेक दोस एग्जांपल्स आल्सो। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज चेन रूल, ऑलराइट, ओके। Okay, so let us take some examples which are more useful for us, more related to us for NEET and JEE. So let us take some examples. जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं y is equal to sin 2x, ठीक है। ओके, तो आप बोलो सर ये तो बड़ा सिंपल है, इज समथिंग लाइक sin x का डेरिवेटिव इज cos x, इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x, बट वो गलत हो जाएगा, सो दैट इज रॉन्ग। ओके, सो इफ वी हैव y इक्वल टू sin 2x, तो इसका डेरिवेटिव अलग होगा। तो जब अपने पास y इक्वल टू sin x है, तो उसका डेरिवेटिव है cos x, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव क्या है cos x। लेकिन जब अपने पास है y इक्वल टू sin 2x, तो उसका डेरिवेटिव अगर तुमने लिख दिया कि सर इसका डेरिवेटिव होगा cos 2x, तो ये गलत है, ठीक है। अब सर ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि ये जो अंदर फंक्शन है ये x नहीं है, ये 2x है। तो कैसे करेंगे? तो हम इसको करेंगे हम लोग चेन रूल से। कैसे? तो स्टेप नंबर 1 हम लोग मान लेंगे कि लेट 2x इज इक्वल टू टी। क्या मान लेंगे? लेट 2x इज इक्वल टू टी, तो ये फंक्शन हो जाएगा sin t। ये फंक्शन क्या हो जाएगा? sin t, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 हम इसमें क्या लगाएंगे? चेन लगाएंगे। तो हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, y की जगह पे sin t डाल देंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ sin t विद रिस्पेक्ट टू x। अब ऊपर और नीचे वेरिएबल अलग है, ऊपर का जो वेरिएबल है, नीचे जो वेरिएबल है, वेरिएबल इज नॉट सेम, करेक्ट, वेरिएबल इज नॉट सेम। अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो क्या करेंगे? तो हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। चेन रूल मतलब ऊपर नीचे वेरिएबल सेम करना, यानी जो वेरिएबल ऊपर है वही वेरिएबल नीचे भी आना चाहिए। तो वो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स जो है यहाँ पे। तो ऊपर क्या है? ऊपर है साइन टी, तो नीचे भी टी लाना होगा, तो ये टी और फिर टी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड डी एक्स, यानी ये जो चीज़ है डी ऑफ साइन टी, डेरिवेटिव साइन टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो उधर है, बस हमने एक चेन बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया ये वाला, ठीक है। अब ये साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस टी, क्योंकि अब ऊपर नीचे वेरिएबल सेम हो गया। अब ऊपर नीचे क्या हो गया? अब ऊपर नीचे जो वेरिएबल हमने कर दिया, वेरिएबल क्या हो गया? सेम। तो सेम हो गया तो वी कैन डिफरेंशिएट एंड वी कैन राइट साइन टी का डेरिवेटिव इज कॉस टी, और आगे का है ये डी टी बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 3 वो है कि अब सब्स्टिट्यूट करो, री सब्स्टिट्यूट। तो टी कितना लिया हमने? 2x, तो ये हो जाएगा कॉस 2x, ये हो जाएगा कॉस टी की जगह पे 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x, ओके। तो ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसका डेरिवेटिव हो चुका है। तो ये हो गया cos 2x, इसमें से 2 बाहर आएगा, 2 कांस्टेंट है और x रेज टू 1 है, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा पावर रूल से 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 इधर ले आओ, तो 2 cos 2x, ये हो गया x रेज टू 0 यानी 1 हो गया, तो इंटू 1 यानी 2 cos 2x। मतलब cos 2x नहीं था आंसर, इसका आंसर है 2 cos 2x। क्या आंसर है? 2 cos 2x। मतलब ये जो 2 है ये बाहर आएगा, ठीक है, ये 2 बाहर आएगा, 2 cos 2x, ओके। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो बेसिकली आप समझ रहे होंगे कि जो x का जो कोएफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos हो जाएगा और x का कोएफिशिएंट बाहर आएगा, 2 cos 2x, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग करेंगे अगला सवाल जो है वो है cos 2x। तो ये हो गया sin 2x, अब आपको करना है cos 2x, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे, आप वीडियो पॉज कर लो, ट्राई कर लो, ठीक है। अगर आप बोलोगे सर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है सर, तो मैं बोलूंगा कि आंसर शुड बी माइनस साइन, तो वो गलत हो जाएगा, दैट बी रॉन्ग, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है, चलो देखते हैं। तो वही तरीका है, सबसे पहले 2x को हम t मान लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉस टी, ठीक है। फिर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस टी। फिर चेन रूल लगा देंगे, वेरिएबल सेम नहीं है तो चेन रूल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा
डेरिवेटिव ऑफ cos t विद रिस्पेक्ट टू t इंटू डी टी बाई डी एक्स। चेन रूल लगा दिया, एक चेन लगा दिया, तो cos t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन टी और ये डी बाई डी एक्स। हो गया, यहाँ समझ में आ गया आपको स्टेप। अब स्टेप नंबर 3 में हमको क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे t को वापस डाल देंगे 2x। तो जब t को 2x डाल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x और ये हो जाएगा d ऑफ 2x बाई 2x। ये 2x सब कुछ सेम रहेगा, हो जाएगा माइनस साइन और ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस साइन, मतलब माइनस 2 साइन 2x। ये इसका आंसर होगा। मतलब ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा dy बाई डी एक्स होगा इसका माइनस 2 साइन 2x। ठीक है, मतलब फिर से वही हुआ, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, वेरी गुड, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, लेकिन कोएफिशिएंट बाहर आया तो माइनस 2 साइन 2x। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग इसका एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं और उस कंक्लूजन को याद कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं इसको मिटाता हूँ। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट, जैसे अपने पास है y इज इक्वल टू साइन ax, तो इसका डेरिवेटिव होगा a बाहर आएगा और साइन का cos, a cos ax। ठीक है, अगर मान लो अपने पास है y इज इक्वल टू cos ax, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ax और a बाहर आएगा तो माइनस a साइन ax। ये हो गया cos x का डेरिवेटिव, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, समझ में आए। अच्छा, अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा होता y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 5 होता तो क्या करते हैं, तो भी आप वही करते हैं, आप इसको t मानते हैं, ये हो जाता y इक्वल टू साइन t, फिर इसका डेरिवेटिव लिखते हैं, dy बाई डी एक्स चाहिए आपको, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन t विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर चेन रूल लगाते हैं, तो वो हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ साइन t विथ रिस्पेक्ट टू t इंटू डी टी बाई डी एक्स, फिर साइन t का डेरिवेटिव हो जाता है cos t, तो cos t इंटू डी टी बाई डी एक्स, फिर t को वापस सब्स्टिट्यूट कर देते, तो वो हो जाता है cos ऑफ 2x प्लस 5 और डी टी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या आता, 2x का 2 हो जाता क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा, राइट, x रेज टू 1, 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स रेज टू 0, तो 1 इंटू एक्स रेज टू 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, तो 1, x का डेरिवेटिव 1, तो सिर्फ 2 आता और 5 एक टा चाहे, 5 अकेला है तो 5 का डेरिवेटिव कितना होता, वो होता 0, तो सिर्फ ये 2 बच जाता है, यानी फिर से ये हो जाता है 2 cos 2x प्लस 5, 2 cos 2x प्लस 5, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वाले में अगर ये ax प्लस b हो तो आंसर होगा साइन, आप पहले वाला नोट कर लो, पहले आप ये यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है, फिर हम लोग आगे का लिखेंगे नेक्स्ट 2 रूल्स। ठीक है, आप पॉज करो, नोट करो। ओके, अब देखो अगर ये ax प्लस b होता, ax प्लस b, तो इसका डेरिवेटिव होता cos ऑफ ax प्लस b, साइन थीटा cos थीटा, बस ये कोएफिशिएंट फिर बाहर आ जाता, ये b नहीं आता, सिर्फ a, तो इसमें भी सिर्फ कोएफिशिएंट बाहर आएगा, इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट बाहर आएगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, अगर यहाँ पे होता ax प्लस b तो cos का डेरिवेटिव होता माइनस साइन ax प्लस b होता और कोएफिशिएंट बाहर आता a। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, इस चीज को समझ लीजिए। ठीक है, लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जाम। ओके, मैं इसको मिटाता हूँ। ओके, देखिए, तो अब इसके बाद जो है हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मानिए अपने पास है, तो आप हमेशा बेसिक रूल यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मान लो ऐसा कुछ आ गया, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 8x, अब क्या करोगे, तो ये साइन ऑफ समथिंग है। ठीक है, ये हाँ, अगर ये ऐसा होता साइन x इंटू ऐसा होता तो फिर आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो फिर आप क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये साइन ऑफ ये है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा, ये f ऑफ g ऑफ x है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर इस पूरे को मैं t मान लूंगा। वेरी गुड, यही करना है, एक पहला फंक्शन छोड़ के बाकी सबको t मान लेंगे।
तो आप ले लीजिए t इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 8x, समझ में, इसको t मान लिया। तो आपको y क्या हो गया, y हो गया sin t। अब आप क्या चाहिए, आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, मतलब आप लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ साइन टी, लेकिन ऊपर नीचे वेरिएबल सेम नहीं है, तो आप वेरिएबल सेम करोगे, यानी ऊपर t है तो नीचे भी t लिखोगे, इनटू क्या लिखोगे dt बाई डी एक्स। अब क्या है, अब ऊपर नीचे वेरिएबल सेम है तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos t, सो cos t इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप t को वापस रिसब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ, तो t की जगह पे आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 8x, ये आ गया, ये हो गया cos t, और फिर dt बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ, ये t पूरा डालना है आपको, ठीक है, तो t को डाल दीजिए, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, तो 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 8x, ठीक है, ओके। तो कुल मिला के dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा cos ऑफ, तो 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 8x, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5, इसका पता है आपको 2 इंटू 5 10x हो जाएगा, 10x1 प्लस, है ना, इधर मल्टीप्लाई करना है, एक कम करना है, 7 3 21 x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। तो 10x प्लस 21x स्क्वायर प्लस 8, ये इसका आंसर है, ओके। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। लेट अस गो अहेड एंड टेक few more examples and then we'll end this video, just 2 or 3 more examples. So we have y is equal to, let us say, log of, so ln x अगर होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, उसका डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, ठीक है। बट अगर मान लो, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि y इज इक्वल टू है ln ऑफ ax प्लस b, ln ऑफ ax प्लस b, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, कैसे करना है, बहुत सिंपल है सर, सबसे पहले इसको t मानो, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ln t। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ln t विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ऊपर नीचे वेरिएबल सेम नहीं है जी, वेरिएबल सेम करो जी, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ln t, ऊपर t है नीचे t लेके आओ, इनटू ये हो गया dt बाई डी एक्स। तो हमने क्या किया, हमने एक चेन लगा दिया इधर, अब ये ln t और t ऊपर नीचे वेरिएबल सेम हो गया, तो उसका डेरिवेटिव होगा 1 बाई टी, तो 1 बाई टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो 1 बाई टी, टी क्या आ गया, टी लिया आपने ax प्लस b को, तो 1 बाई ए एक्स प्लस बी, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 1 बाई ए एक्स प्लस बी, और ये जो पहला टर्म है, पहला टर्म ax है, इसमें a बाहर आएगा, a कांस्टेंट है, a बाहर आएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होगा, b का डेरिवेटिव 0, क्योंकि b एकटा चाहे b एक सिंगल कांस्टेंट है, सिंगल कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, वो 0 होता है, बस। तो आंसर आ गया a बाई ए एक्स प्लस बी, a बाई ए एक्स प्लस बी। तो आपको समझ में इसका डेरिवेटिव कैसे याद रखोगे, आप ऐसे याद रखोगे कि जब अपने पास ln ऑफ ax प्लस b है, राइट, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा ये y है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो जैसे ln x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, तो ln ऑफ ax प्लस b का डेरिवेटिव भी 1 बाई एक्स प्लस b होगा, बस कोएफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा ऊपर, बस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आ जाएगा ऊपर, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसका आप ऐसे याद कर सकते हैं। हम लोग लेते हैं एक और एग्जाम्पल, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से, राइट, वीडियो पॉज एंड नोट डाउन, ओके। लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो आप देख रहे हैं कितना इजी है, राइट, हमें सिर्फ ये देखना है कि इफ इट इज f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x, इट इज नॉट fx into gx, इट इज नॉट fx into gx, इट इज f ऑफ g ऑफ x, तब चेन रूल लगाना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि आपको दिया गया है y इज इक्वल टू e रेज टू ax प्लस b, ठीक है। अगर अपने पास होता है y इज इक्वल टू ex, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव ex होता है, सिर्फ e रेज टू x ही ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव सेम होता है, सेम टू सेम, तो e रेज टू x ऐसा फंक्शन है। अब ये आपको दिया है a रेज टू ax प्लस b, अब क्या होगा, तो अब आप क्या करोगे, इसको t मान लोगे, तो फिर से आपने मान लिया ax प्लस b को क्या मान लिया t, और आप इस फॉर्म में लेके आ रहे हैं, नॉन फॉर्म में, तो एक अननोन फॉर्म से एक नॉन फॉर्म में ला रहे हैं हम लोग पहले, और फिर चेन रूल लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू e रेज टू t,
ठीक है, इसको डेरिवेटिव हमें करना है, यानी dy बाई डी एक्स करना है। तो आप लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, ऑफ ई रेज टू टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू टी। अब ऊपर नीचे वेरिएबल सेम नहीं है, पहले वेरिएबल सेम करो, यानी डी टी, और फिर ये होगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब ऊपर नीचे वेरिएबल सेम हो गया, तो ई रेज टू टी का डेरिवेटिव, जैसे ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स होता है, लेकिन ये क्या है, ये है डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स एंड दैट इज ई रेज टू एक्स। तो वैसे ई रेज टू टी का डेरिवेटिव ई रेज टू टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब हम लोग आगे लास्ट स्टेप पे। लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप ये है कि हम लोग को टी को वापस सब्स्टिट्यूट करना है, रीसब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो वो कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू टी, कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। तो ये आंसर आ जाएगा ई रेज टू ए एक्स प्लस बी इंटू, अब यहाँ दो टर्म है ए एक्स और बी, तो ए एक्स में ए बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और b का डेरिवेटिव 0, क्योंकि b एकटा चाहे सिंगल। तो ये हो गया a इंटू ई रेज टू ए एक्स प्लस बी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए। तो आप इसको जो लास्ट के 2-3-4 हमने डिस्कस किए उनके तो आंसर्स आप याद कर लीजिए। तो ये है चेन रूल। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डबल डेरिवेटिव क्या होता है और इसके एप्लीकेशंस क्या होता है, किसके डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशंस क्या होते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो वो हम लोग और देखेंगे। तो अभी और 2 लेक्चर डेरिवेटिव्स पे होंगे, तो आप ध्यान से लिखिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से जो है इन चीज़ों को वापस प्रैक्टिस करिए। ठीक है, 2 बार 4 बार 10 बार, तभी आपको वो चीज़ आएगा। चलिए, टिल देन